Okay, so today we're going to start with larynx. ठीक है, अभी तक हमने फोर्थ सबस्टेज के जो टॉपिक्स किए हैं उसमें हमने नॉर्मा बेसालिस किया था, हमने ओरल कैविटी की थी, फेरिंग्स की थी और टंग की थी। ठीक है, अब फेरिंग्स के आगे जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है दैट इज योर larynx. So today the topic will be all about, अभी we're going to take two topics I think to cover it up because it is quite extensive. थोड़ा सा confusing भी होता है, तो I would like that you guys keep your minds open and we do it. Yes. So when we study the larynx, first I'm going to introduce to you what the larynx is. उसके बाद थोड़े से we'll do the relations के what is in front of it, what is behind it, what is on its left, right, medial, lateral, क्या क्या पड़ा हुआ है, cartilages उसके अंदर कौन सी हैं, what is the skeletal framework that makes the larynx. ठीक है, larynx is made up of certain number of cartilages. We're going to look at that. Then joints, जिस तरह ये cartilages एक दूसरे से joint हुई हुई हैं या join हुई हुई हैं, those joints we're going to study. Obviously between the cartilages सिर्फ joints नहीं हैं, कुछ membranes and ligaments भी हैं, those membranes and ligaments. So together with the cartilage or membranes and ligaments, ये सारा एक skeletal framework बनाता है larynx का. Larynx में कोई bony चीज़ नहीं है, सारा larynx का skeletal framework तरह बनता है कि cartilage के साथ membranes जुड़ी हुई होती हैं और वो पूरा एक उसे frame दे देता है. ठीक है, cavity of the larynx. ठीक है, cavity of the larynx यानी larynx के अंदर क्या है, muscles जो larynx पे act करते हैं, वो everybody's heard about what the vocal cords are. Vocal cords में you know those are the places, vocal cords are the cords or the folds जहाँ से voice produce होती है, phonation होती है. ठीक है, so movements of vocal cords और उस पर किस तरह muscles act कर रहे हैं, किस तरह आवाज़ निकलती है, किस तरह respiration में larynx होता है, blood supply of the larynx. ठीक है, so these are the things that we have to cover for the larynx. And if at any point you have any questions, either you raise hand or you write it down in the chat box, or Nadeem will keep unmuting you, और आप लोग पूछ सकते हैं and you guys can keep talking in the middle too. ठीक है, so we come over here on the next thing. It shows us कि larynx किस तरह फंक्शन कर रहा होता है. अभी तक तो हम बार बार बात करती थी, मैं epiglottis जो है larynx का पार्ट है और वो pharynx को बंद कर देता है, वो larynx को बंद कर देता है ताकि खाना pharynx तक जाए. तो we're going to look at these three steps. The first step is the tongue forces compacted bolus into the oropharynx. ठीक है, ये tongue है, ये oral cavity proper में food का bolus है, जिसे tongue ने push किया backwards and upwards और पीछे की तरफ push किया. ये वाला हिस्सा क्या है? What is this area called? नदीम unmute कर लें सबको. Where I kept my cursor, what is that area called? This one. Are you all with me? Are you guys with me? Yeah, that's the nasopharynx. Yes, Isma Pharynx. ठीक है, और ये क्या है? This is the soft palate. Okay, it's labeled. It's a soft palate. So the food comes over here और soft palate क्या करेगा? वो raise होगा और यहाँ से seal off कर देगा nasopharynx को. ठीक है? Then the food comes here. Oropharynx में travel करता हुआ आएगा. तो ये epiglottis है और ये larynx का inlet है. ठीक है? ये इतना larynx का हिस्सा है और उसके नीचे trachea है. और जो इतना सा एरिया है जो नहीं नजर आ रहा है, ये क्या है? जो बिल्कुल स्लिट लाइक है. What is this? Esophagus नीचे जाके है, ये आपका laryngopharynx है. ठीक है, ये laryngopharynx है. ये larynx यहाँ पे है ना, तो जो larynx के पीछे हिस्सा होता है ये laryngopharynx होता है. ये सारा oropharynx है, ये सारा laryngopharynx है. जहाँ तक larynx है वहाँ तक laryngopharynx है. जहाँ तक ओरल कैविटी वहाँ पे ओरोफेरिंक्स है, जहाँ पे नोज है वहाँ पे नेजोफेरिंक्स है. यानी यहाँ तक लेरिंगोफेरिंक्स है और उसके नीचे ये इतना छोटा सा हिस्सा एसोफेगस का. तो अभी एसोफेगस नहीं शुरू हुआ. दिस इज योर laryngopharynx. So the food has to come in this laryngopharynx and esophagus and not go into your larynx and trachea. तो ये क्या करेगा? Now the larynx is going to mold itself, the epiglottis is going to mold itself, the laryngeal movement folds epiglottis, pharyngeal muscles push bolus into esophagus. ठीक है, अब ये larynx ने किस तरह बिल्कुल larynx को बंद कर दिया. Do you see?
लेरिंग्स और ट्रेकिया कर दिया, वहां से सॉफ्ट पैलेट ने नेजोफेरिंग्स को सील ऑफ कर दिया. सो द फूड इज हैज नो ऑप्शन बट टू गो इनटू द ओरोफेरिंग्स एंड द इसोफेगस. फेरिंग्स के हमने कुछ मसल्स पढ़े थे जो फूड को नीचे पुश करते थे. कौन से मसल्स थे, उनका क्या नाम होता था? अनम्यूट हो जाओ सारे प्लीज, बोल के जरा कॉरेस्पॉन्ड करो. सब इसोफेगस लिखते गए, किसी एक ने लिख दिया तो सारे. फैसल का तो काम ही ये ऊपर जो जवाब लिख दे तो लिख दे ऊपर वाला सोचे बगैर. Yes, I'm asking you. Tell me. All three constrictor, not just the middle constrictor, all three. All three constrictors do this. ठीक है, constrictors का काम ही ये था कि वो constrict करके pharynx से नीचे खाना लेके जाते थे. Constrictors किस तरह के मसल थे? Outer, circular, inner, longitudinal. कौन से थे? दोनों में से कौन से थे constrictors? Inner longitudinal, outer circular. Outer circular थे, inner longitudinal बाकी तीनों थे. Palatopharyngeus, stylopharyngeus, एक और था मुझे नहीं याद, किसी को याद है? Palatopharyngeus, salpingopharyngeus. Very nice, very nice. The third one was your salpingopharyngeus. ठीक है. Then the third thing is that the bolus of the food moves down along the esophagus and larynx returns to its normal position. ठीक है. Epiglottis has popped right open ताकि you can inhale the air back in. ठीक है. So that is the movement when you are ingesting food. Larynx देखते हैं. What is larynx? It is an organ of phonation. Phonation क्या होती है? Voice. Voice. Okay, production of sound, production of voice. It is part of the air passage, regulates passage of air and inspiration and on inspiration and expiration. ये क्या है? ये कौन सी कार्टिलेज है? Thyroid. थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेज है. ये सारा क्या है? ट्रेकिया. ये सारा ट्रेकिया है. थायराइड कार्टिलेज के नीचे एक छोटी सी और कार्टिलेज है, इसका किसी को नाम पता है? थिरोकोइड कार्टिलेज. क्रीकोइड कार्टिलेज. इट्स कॉल्ड द क्रीकोइड कार्टिलेज. और ये क्या है सारा जो लंग्स में जाता है? Bronchioles, bronchi and its bronchioles. ठीक है. So this is your whole कि किस तरह आपका respiratory area बनता है. For here, I want you to see ये कौन सी bone है? Thyroid. Hyoid bone. और ये क्या है? Thyroid cartilage. थायराइड कार्टिलेज. What is this? Thyroid gland. Thyroid gland. Thyroid gland. किसके ऊपर पड़ा हुआ है? ये पीछे क्या है? Trachea. ट्रेकिया है. ठीक है. और ये थोड़ा सा एपिग्लॉटिस का हिस्सा निकल. ठीक है. एपिग्लॉटिस का हिस्सा है. तो थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में एक मेम्ब्रेन है, इसका क्या नाम है? Thyrohyoid. थायरोहाइड मेम्ब्रेन. तो हायोइड बोन इस तरह पड़ी हुई, थायराइड कार्टिलेज इस तरह पड़ी हुई. अब हवा में ये है तो ये एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है? क्योंकि इसके बीच में से स्टफ जाना है ना. अब अगर इसमें से गैप होगा तो एयर तो यहाँ से लीक आउट करती रह सकती है. तो ऑब्वियसली इस सब के अराउंड, इनके अराउंड, दैट्स व्हाट आई सेड, ये मेम्ब्रेन्स और कार्टिलेजेस मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती है. ठीक है. मेम्ब्रेन और कार्टिलेजेस मिलके ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती हैं. दैट ये सारी आपकी कार्टिलेजेस हैं. थायराइड की भी कार्टिलेजेस होती है ना, ये जो ट्रेकियल रिंग है, और इनके बीच में ये सारी मेम्ब्रेन काम करती हैं ताकि हवा जो अंदर जा रही है, वरना तो इट विल बी लीकिंग आउट फ्रॉम ऑल दिस एरियाज. ठीक है. सो दिस इज ये लैटरल व्यू है और ये इंटीरियर व्यू है. यहाँ पे ये हायोइड बोन है, नीचे थायराइड कार्टिलेज है. थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज में एक नॉच होती है. दिस इज नोन एज योर सुपीरियर थायराइड नॉच. ठीक है. एंड द हायोइड बोन से लेके थायराइड कार्टिलेज तक द मेम्ब्रेन दैट रन्स इज कॉल्ड द thyroid membrane. You see it over here, you see it over here. ठीक है. उसके नीचे ये कौन सी कार्टिलेज बताई थी मैंने अभी? Cricoid.
क्रीकोइड, ये पीछे से मोटी होती है, आगे से पतली होती है। देखो आगे से पतली से मोटी। हम रिंग पहनते तो रिंग पीछे से बैंड पतला होता है ना उसका, और आगे वाला आपका कोई डायमंड शायमंड होता है, कोई कोई स्टोन लगा होता है, तो वो आगे उल्टा पहन लेना। तो उस तरह ये पड़ी कि इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो रिंग का पतला वाला पोस्टीरियर बैंड है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज योर मोटा वाला हिस्सा, जिसके ऊपर यहाँ पे स्टोन भी लगा हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर क्रीकोइड कार्टिलेज। अब क्रीकोइड और थायराइड के बीच में जो लिगामेंट है उसका क्या नाम होगा? क्रीकोथाइड लिगामेंट। क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट। ठीक है, और ये नीचे ट्रेकिया है, तो क्रीकोइड और ट्रेकिया के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? क्रीकोट्रेकियल मेम्ब्रेन। क्रीकोट्रेकियल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह जो मैंने बात की थी कि सारा कार्टिलेजेस और उनकी मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर से हवा का पैसेज वे होगा, पैसेज वे होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अबव क्या है? फेरिंग्स था, लेरिंग्स के अबव फेरिंग्स था, ऐसे ही था। ठीक है, बिलो क्या है? इट बिलो इट कंटिन्यूज विद द ट्रेकिया, बिलो इट कंटिन्यूज विद योर ट्रेकिया। एंटीरियरली क्या है? कवर्ड बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड इंफ्राहायोइड मसल्स। यानी इसके आगे ये स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। कभी देखा है जब इंट्यूबेट कर रहे होते हैं पेशेंट, देखा है गले से जब वो ट्रेकियोस्टमी करते हैं? किसी को ट्रेकियोस्टमी का पता है? कभी सुना है? कभी कोई किसी ने कोई ग्रेज एनाटमी हाउस कोई शो देखने की कोशिश की है डॉक्टर बनने से पहले कोशिश करने की? Why are you guys so quiet? गाइस स्पीक अप, अनम्यूट हो करो अपने आप को और बोलो। अगर बोलोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं लॉग आउट कर दूंगी। ओके, यू गाइस बेटर कीप टॉकिंग। सो आई वाज आस्किंग यू, किसी को ट्रेकियोस्टमी का प्रोसीजर का पता है? कभी नाम सुना है? कभी देखा है किसी टीवी शो में होते हुए, किसी चीज में होते हुए, किस तरह वो ट्यूब इन द थ्रोट डालते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होती है पेशेंट को, तो एम्बुलेंस नो मैम एंड दे पुट अ ट्यूब और वो पियर्स करते हैं गले के थ्रू, कट लगाते हैं राइट देयर एंड देन, और एक ट्यूब डाल देते हैं। वो डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डालते हैं। दैट इज कॉल्ड योर ट्रेकियोस्टमी। जब बंदे का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ना, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी एयर यहाँ से नहीं ट्रैवल कर सकती, ना नोज से ना मुंह से यहाँ नहीं आ सकती। माउथ ब्रीदर्स भी होते हैं ना, तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए नेजोफेरिंग्स में तो मुंह से भी बंदा ब्रीथ कर लेता है। ठीक है ना, मगर अगर ओरोफेरिंग्स में ब्लॉकेज आ जाए तो ना यहाँ से ब्रीथ कर सकता है, ना यहाँ से ब्रीथ कर सकता है। चोकिंग जब हो रही होती है, कुछ ऐसा हो रहा होता है, यहाँ पे कोई लेरिंग्स में आके कोई ब्लॉकेज हो जाए, व्हाट दे डू इज, देखो इसके आगे क्या है, ये आपका पूरा ट्रेकिया ना, ट्रेकिया के आगे सिर्फ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया वगैरह है। यहाँ से वो एक कट लगाते हैं स्किन में, एक ट्यूब सीधी अंदर डालते हैं और उधर से एयरवे देते हैं, वहां से एयर जाती है सीधा ट्रेकिया में। इस सब को बाईपास करके यहाँ से ट्रेकिया से एयर जाती है और नीचे आपके इट गोज ऑल द वे टू द लंग्स। ठीक है, दैट्स योर ट्रेकियोस्टमी। यहाँ पे पियर्स। So you guys will find out from me what tracheostomy is. Why is it possible? Because trachea और larynx के आगे सिर्फ skin, superficial fascia, deep fascia पड़ा हुआ है। इतने आगे कुछ चीजें नहीं पड़ी हुई, सिर्फ skin, superficial fascia, deep fascia, infrahyoid muscles हैं। ठीक है, और इसके each side पे thyroid का लोब है। अब larynx को when we study we have cartilages and उस cartilages, those cartilages are joined by joints. And there are ligaments and membranes between those cartilages, and those cartilages are moved by muscles. So this जितनी ये चीजें स्लाइड पे लिखी हुई हैं, are you guys following? Yes ma'am. ठीक है, सो जितनी भी चीजें इस स्लाइड में मैंने लिखी हुई हैं
we're going to be studying each of them. ठीक है? So the first study is the cartilages. क्या cartilages है? अगर इस पिक्चर पे मैं आ जाऊँ तो ये क्या है? Hyoid bone. ये हाइड्रोइड बोन है. शाबाश. ये क्या है? Epiglottis. Epiglottis है. ये क्या है? ये थायराइड मेम्ब्रेन है. Thyroid membrane. Membrane. ये क्या है? Thyroid cartilage. ये थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेजेस है. थायराइड ग्लैंड किसने कहा है? ग्लैंड नजर आ रहा है यहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू? ये क्या है? ये Cricoid cartilage. कार्टिलेज. क्रीकॉइड कार्टिलेज. क्रीकॉइड कार्टिलेज. ये कौन सा लिगामेंट है? मीडियन दिस इज योर क्रीकोथायरॉइड. membrane. ये क्या है? ट्रेकिया. Trachea. Nice. ठीक है, let's move on. So I'm going to teach you now the cartilages. कि ये break down होके ये cartilages कितनी है हमारे पास. We're going to concentrate on this side of the slide first. हमारे पास 3 unpaired cartilages होती हैं, 3 paired cartilages होती हैं, which makes a total of how many cartilages? 6. No, it doesn't. This is why you guys are not engineering students and you're medical students. These are 9 cartilages. 3 unpaired, 3 paired. 9 cartilages होती हैं. ठीक है? If they ask you in an MCQ कि कितनी cartilages होती हैं, तो the larynx has 9 cartilages, not 6. Groups में 2 divide होती है, 3 unpaired and 3 paired. जो unpaired है, उसमें सबसे बड़ी largest cartilage है थायराइड, जो कि ये वाली है. ठीक है? उसके बाद जो सेकंड अनपेयर्ड कार्टिलेज है वो ये क्रीकोइड है. अब ये तुम लोगों को रिंग शेप नजर आ रही है? यस. You see कि जो पतला वाला पार्ट है रिंग का वो आगे है और जो मोटा रिंग का पार्ट है वो पोस्टीरियरली है. इस तरह आप रिकॉग्नाइज करते हैं इसे. ठीक है? ओके मैम. Then the third thing is the epiglottis, जो ऊपर है. ठीक है? You have these 3 and then 1 second. Yeah. Then you have the 3 paired cartilages. ये paired cartilages हैं जो cricoid के ऊपर पड़ी होती है मगर posteriorly होती है, इसलिए ये anterior view है. ये वाला anterior view है, तो इस पे नहीं नजर आ रही, मगर इस पे पीछे से नजर आ रही है. अगर इन्होंने transparent किया हुआ है तो पीछे भी कुछ cartilages है. नजर आता है? Over here when you come posteriorly हमारे पास जो paired cartilages है that is called the arytenoid. Arytenoid की paired है. Arytenoid के ऊपर छोटी सी पड़ी होती है corniculate. Let me make this big for you. Corniculate. This is your, I'm gonna make it big. Wait. This is your corniculate. ये छोटी सी arytenoid के ऊपर corniculate पड़ी होती है और corniculate के साथ छोटी सी cuneiform होती है. ठीक है? तो ये तीनों paired हैं. दोनों तरफ arytenoids है posterior side पे, उनके ऊपर छोटे छोटे से corniculates है और उनके ऊपर छोटी छोटी सी cuneiforms है. ठीक है? So these are your 3 paired and 3 unpaired cartilages. Let's look at all the things जो उन्होंने label किए हैं. कभी कभार इस एरिया में एक ट्रिटिशियल कार्टिलेज होती है. इट इज योर ट्रिटिशियल कार्टिलेज. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. ठीक है? टाइनी सी कार्टिलेज होती है. एपिग्लॉटिस किसकी शेप का लग रहा है? ये क्या शेप लगती है? लीफ की शेप. लीफ शेप्ड है. ठीक है? लीफ की एक स्टॉक होती है पीछे से, तो ये लीफ शेप्ड है. उसके बाद ये किस तरह की है? कोई फाइटर्स क्या रखते थे अपने सामने जब तलवार से खेलते थे? क्या चीज होती थी सामने? शील्ड. हाँ बिल्कुल ईशा, ये बिल्कुल सोर्ड लग रही है ना. पता नहीं तुमने बचपन में कौन सी सोर्ड देखी थी, मुझे तो नहीं लगती है. सो दिस इज योर शील्ड. ठीक है? ये शील्ड शेप्ड होती है. शील्ड में उन्होंने हमें क्या बताया कि ये सुपीरियर थायराइड नॉच थी. ये नॉच जो थी इसका क्या नाम था? सुपीरियर थायराइड नॉच. अब ये जो तुम लोगों को एक प्रोमिनेंस सी नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं लेरेंजियल प्रोमिनेंस. एडम्स एप्पल का पता है गले में क्या होता है?
Hello, you guys there? एडम्स एप्पल होते हैं ना, नॉर्मली बॉयज के ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, सो दैट इज योर Yes, ma'am. लेरेंजियल प्रोमिनेंस। तो एडम्स एप्पल जो है वो लेमैन टर्म में कहते हैं, सब अपने एडम्स एप्पल फील करो, जहाँ पे एडम्स एप्पल फील होता है ना उसके पीछे लेरेंजियल प्रोमिनेंस पड़ी हुई है थायराइड कार्टिलेज की, ठीक है, दैट्स योर लेरेंजियल प्रोमिनेंस की वजह से होता है। देन यू हैव ये जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, इसमें सुपीरियर हॉर्न है, इंफीरियर हॉर्न है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? हॉर्न का दूसरा नाम क्या होता था जो हम कौन सी बोन के साथ पढ़ते थे? हॉर्न भी कहते थे, कुछ और भी कहते थे, कॉर्ना, ठीक है, कॉर्नो और द कॉर्नो, ठीक है, जो हम उसको हायोइड बोन के साथ पढ़ते थे। तो इसके अंदर भी हमारे पास एक सुपीरियर हॉर्न है और इंफीरियर हॉर्न है, ठीक है, और ये लैमिनास है जो दोनों साइड पे होते हैं ना लेरेंजियल प्रोमिनेंस के, एक राइट साइड का लैमिना होता है, एक लेफ्ट साइड का लैमिना होता है, दीज आर जस्ट नोन एज लैमिनास, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाए इसी पिक्चर में, दिस इज योर रेटिनोइड कार्टिलेज। ये किस शेप की है? क्या शेप नजर आ रही है सबको? गाइस लाउडर, व्हाट इज दिस? ये क्या शेप है? शेप क्या है? लंग्स की शेप? Triangle. Yes, it's triangular, but we won't call it a triangle. Triangle को 3D में क्या कहते हैं? Pyramid. Pyramid. So this is a pyramidal shaped cartilage. पहली वाली लीफ शेप थी, फिर शील्ड की शेप की थी, ये पिरामिडल शेप्ड कार्टिलेज होती है। ये इसका क्या बनेगा इस लिहाज से? ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा? एपेक्स बनेगी, और ये क्या बनेगी? Base. बेस बनेगी। अब इसकी बेस में से ना दो प्रोसेसेस निकलते हैं, दो एक्सटेंशंस होती हैं। एक ये एक्सटेंशन है छोटी सी, ये क्या है? वोकल प्रोसेस, और एक ये वाली एक्सटेंशन है, इसको हम कहते हैं Muscular मस्कुलर process. प्रोसेस। Muscular process. के मसल्स है ना वो यहाँ पे लगता है। So you have a vocal process and you have a muscular process, ठीक है। उसके ऊपर छोटी छोटी सी कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म है। अब नीचे आ जाओ, ये कौन सी कार्टिलेज रह गई थी? Cricoid cartilage. Cricoid cartilage. क्रीकॉइड कार्टिलेज। अब क्रीकॉइड कार्टिलेज को हमने क्या नाम बताया है? कौन सी शेप Ring shape. बताई है? Ring shape. रिंग शेप्ड है, शाबाश। सो इट इज अ रिंग शेप्ड कार्टिलेज। इसका लैमिना पीछे, ठीक है, और इसकी आर्च आगे है, ठीक है, इसकी आर्च आगे है एंटीरियरली। तो जब भी तुम लोग तस्वीर देखोगे कभी कंफ्यूज हो जाओ तो यू वुड नो फ्रॉम द क्रीकॉइड कार्टिलेज। जो क्रीकॉइड कार्टिलेज का पतला वाला हिस्सा है वो आगे आता है, वो एंटीरियर साइड होती है, और जो पूरा वाइड हिस्सा होता है लैमिना, दैट इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ क्रीकॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये थोड़ी सी आर्टिकुलर सरफेस है, इसको कहते हैं रेटिनोइड आर्टिकुलर सरफेस। इसके ऊपर आके रेटिनोइड्स बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी साइड पे, यहाँ पे ना इधर नहीं तस्वीर में दिखा, इसकी साइड पे होती है ये और दूसरी कौन सी कार्टिलेज से ये मिलता है? एक तो ये रेटिनोइड कार्टिलेज से मिलता है, और कौन सी कार्टिलेज इसके ऊपर आके बैठती है? देखो कौन सी Thyroid cartilage. ये कौन सी कार्टिलेज है जो बैठी हुई क्रीकॉइड के ऊपर? Thyroid. थायरॉइड, ठीक है। तो ये इसके ऊपर थी, ये देखो ये पीछे तक जा रहा है इसका लैमिना, ये पीछे से बैठा हुआ है इसके ऊपर रेटिनोइड। तो ये रेटिनोइड की आर्टिकुलर सरफेस यहाँ आएगी, मगर ये एंटीरियरली आर्च के ऊपर नजर आती है थायरॉइड आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। ये थायरॉइड का कौन सा हिस्सा है थायरॉइड कार्टिलेज का जो इसके ऊपर आ रहा है? Inferior horn. Inferior horn. You guys are super smart, so nice, ठीक है। So the inferior horn comes and sits over here, उसको आगे से कवर कर देता है, और ये पीछे से इसके ऊपर यहाँ पे आके बैठता है, ठीक है। The lamina is posteriorly and the arch is anteriorly. So this is the cartilages. किस तरह हम इन्हें डिवाइड करते हैं? The other thing I want you to see is this. अब ये इन्होंने पूछा हिस्टोलॉजी पर, कभी एक बार पूछ लेते हैं। हमारे पास 3 हाईलाइन कार्टिलेजेस है और 3 इलास्टिक कार्टिलेजेस है, ठीक है। हाईलाइन हमारी कार्टिलेजेस है थायरॉइड, क्रीकॉइड, बेस ऑफ द रेटिनोइड्स, ठीक है। ये 3 हमारी हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं जो इवेंचुअली ये वाली कार्टिलेजेस ऑसिफाई और बोन भी बन सकते हैं। 25 इयर्स ऑफ एज के बाद ये बोनी हो जाएंगी, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस, इलास्टिक ही होगी ना, जिस तरह हमने शुरू में दिखाया है
कितने मजे से वो आके इसके ऊपर बैठ जाती है। द वे ये इसने अपने आप को इस पोजीशन से यूं करके मोल्ड कर लिया, तो इट हैज टू बी एन इलास्टिक कार्टिलेज टू बी एबल टू डू दैट, राइट? सो एपिग्लॉटिस को हमेशा याद रख लो कि इट इज एन इलास्टिक कार्टिलेज। Epiglottis is an elastic cartilage, और जो tiny tiny corniculate cuneiform है, those are also elastic cartilages, ठीक है? And they do not ossify. और processes जो थे ना arytenoid के, कौन से 2 processes थे, क्या नाम थे? vocal process, vocal and muscular. Muscular और and vocal. muscular. Very nice. The vocal and the muscular processes, ठीक है? So these are your, also these are what? These are elastic cartilages. Let's come on to this picture now. ये anterior view है जो कि हमें समझ आ गई है। You posterior view है, ठीक है guys? This is your posterior view. हवा ने कहाँ जाना है, एयर पैसेज कहाँ होना है, इधर अंदर आना है, ठीक है? तो इसलिए अभी हमें मेम्ब्रेन्स चाहिए जो इसे पीछे से भी सील ऑफ करें, राइट? वी नीड अ प्लेस। ये देखो, ये तो खुली जगह पड़ी हुई है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक तो अंदर चला जाएगा, वो यहाँ से अंदर चला जाएगा और ट्रेकिया में चले जाएगा, मगर ये हिस्सा जो पूरा खुला है इसकी भी हम मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये वाली कौन सी कार्टिलेज है, ये जो ट्रायंगुलर, ये Corniculate. कॉर्निकुलेट के ऊपर कौन सी बैठी होती है? Cuneiform. क्यूनिफॉर्म। और ये बड़ी वाली ट्रायंगल एरिटेनॉइड है, उस पर छोटी सी ट्रायंगल कॉर्निकुलेट है, उसके ऊपर छोटा सा सर्कल क्यूनिफॉर्म होता है, राइट? और एपिग्लॉटिस इस तरह का होता है, लाइक अ लीफ। और ये इसकी स्टॉक जो है वो किधर अटैच हुई हुई है, कौन सी कार्टिलेज की मीडियल साइड पे हुई हुई है? Cricoid cartilage. Oh, look at it. Look at the picture. Corniculate. No, come on, look at it. Thyroid. थायराइड पे हुई हुई है, ठीक है? ये थायराइड के ऊपर अटैच हुई हुई है। देखो ना, ये सारी थायराइड का लैमिना था पीछे से। ये थायराइड की मीडियल साइड है जो अंदर की तरफ है, और ये थायराइड की बाहर वाली क्या साइड है? लैटरल साइड है। दिस इज योर लैटरल साइड। इसी तरह हम मैंडिबल को पढ़ते थे ना, जो बाहर की तरफ होता है लैटरल सरफेस होती है, जो अंदर की तरफ होती है वो Medial. मीडियल सरफेस होती है। Okay, so the thyroid cartilage is a shield-shaped, opened posteriorly, angulated anteriorly. इस तरह shield shape anteriorly, open posteriorly, और ये laterally इस तरह angulated है। Largest cartilage protects the larynx and provides an attachment to the vocal cords. ठीक है? ये थायराइड के सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये हमारा राइट लैमिना है, ये सारा लेफ्ट लैमिना है। ये क्या है यहाँ पे? Notch. Superior. सुपीरियर थायराइड नॉच। इसी तरह एक इंफीरियर थायराइड नॉच होती है। शाहिर के अलावा बाकी सारे बॉयज कहाँ गए हैं इस क्लास के? कहाँ हैं बाकी बॉयज? शाहिद है इस क्लास में, फैसल है, जीशान है। तुम लोगों ने नहीं बोलना कुछ, सामने लेबलिंग हुई हुई है तब भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। यस मैडम, मैं अटेंडेंस के लिए नहीं पूछती whether you're there or not. I know you're there. I need you to show me that you're here. And the new boys too, okay? The new Faisal and Mazhar and जो भी तीसरा boy है, participate, okay? Speak up. Let me hear you. Let me know that you can talk. ठीक है? So superior thyroid notch है, ये inferior thyroid notch है, ये Adam's apple वाला एरिया क्या है? Prominence, ma'am. Laryngeal prominence. ठीक है। So when we come over here, this is your superior horn, this is your inferior horn. Inferior horn किसके साथ जाके लगता है? cricoid cartilage, Cricoid cartilage के साथ लगता है। और जो सुपीरियर हॉर्न है वो लैटरल थायराइड लिगामेंट्स वहां से निकलते हैं, और वो ऊपर जाके हायोइड बोन से लैटरल थायराइड लिगामेंट्स लगते हैं। क्या लगता था जो यहाँ से पूरा थायराइड कार्टिलेज से ऊपर मेम्ब्रेन जाती थी, सारे से ऊपर हायोइड तक, वो कौन सी मेम्ब्रेन थी? thyroid,
थायरोहायोइड। मेमब्रेन। और जो Thyroid. ये जो साइड से जाती है ये कौन सी है? ये लैटरल थायराइड लिगामेंट। साइड पे ये थिक हो जाती है और ये लैटरल थायराइड लिगामेंट बन जाती है। Right. Noman, you better participate too if you're still part. Acha ji, again I was gonna show you some things. Yeah, so here I was. This is what I was talking about right now. इसकी बात की अभी तुम लोगों से एक सेकेंड। जूम हो गई है पिक्चर? यस मैम। जूम होती है साथ साथ पिक्चर? यस मैम, हम खुद भी कर सकते हैं जूम। Can you guys hear me? यस मैम। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes. Yeah. मैम अब नहीं आ रही। Guys, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। और जब मैं जब मैं करती हूँ क्या कहते हैं जूम करती हूँ तो नजर आता है सबको सही से? यस मैम, हम खुद भी जूम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। So I was over here and I was going to explain this diagram first कि इसके अंदर ये थी, ये सारी आपकी कौन सी मेम्ब्रेन थी? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। कौन सी? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। हाँ, किसी ने बीच में क्रिकोथायरॉइड भी कहा है। अच्छा, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन लैटरली थिक हो जाती है, लिगामेंट बना जो मैंने ट्रिटिशियल कार्टिलेज बताई थी ना, छोटी सी, वो होती कभी कभार कुछ लोगों में ट्रिटिशियल कार्टिलेज, कोई फंक्शन नहीं होता, बस वैसे ही इस लिगामेंट के अंदर कभी, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और ये है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, इंफीरियर हॉर्न ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज, आर्टिकुलर क्रिकोइड कार्टिलेज, ये क्रिकोथायरॉइड जॉइंट है। Let's come on this picture. अब मैंने तुम लोगों को एक बात बतानी थी, यहाँ इन दोनों के बीच में ये कौन सी कार्टिलेज थी? क्रिकोथायरॉइड। ठीक है, जो क्रिकोथायरॉइड है ना, इसका बीच में दूसरा नाम होता है कोनस इलास्टिकस, ठीक है, इट इज नोन एज द कोनस इलास्टिकस। सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि क्या नाम है। नाउ लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। ऑब्लिक लाइन, कभी किसी ने मुझसे पूछा था क्या होता था, दिस इज योर ऑब्लिक लाइन, ठीक है। ऑब्लिक लाइन ये होती है, उसके ऊपर सुपीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल होता है, इंफीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल होता है, उसके पीछे चले जाए सुपीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न होता है, और ये सारा क्या था, इसको क्या कहते थे? लैमिना। वेरी नाइस, दिस इज योर लैमिना। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट, ये चीजें नहीं आपको दोबारा पढ़ाई जाएंगी, तो ये वाली जो फोर्थ सब स्टेज है इसे अच्छा सा कर लो। अब हम क्रिकोइड कार्टिलेज को करने लगे। अभी तक मैंने तुम लोगों को थायराइड कार्टिलेज इसके पार्ट्स पढ़ाए। क्रिकोइड कार्टिलेज मैंने तुम्हें बताया था कि यूं रिंग शेप्ड होती है,
जो ये वाला पार्ट होता है रिंग का, ये एंटीरियरली पड़ा होता है या पोस्टीरियरली पड़ा होता है? Posteriorly, ma'am. Posteriorly. Posteriorly. ठीक है. It encircles the larynx below the thyroid, thicker and stronger than the thyroid. Always remember, it is thicker and stronger than the thyroid. Important point है. पीछे से ये आगे है इसका इंटीरियर पार्ट और ये इसकी आर्च है, और ये पीछे वाला पार्ट क्या था? Lamina. नहीं. लैमिना. ये किसका आर्टिकुलर फेसेट है? Steroid का. हाँ, ऊपर कौन बैठता था इसके आगे? ये. Retinoid. Arytenoid. रेटिनॉइड. यहाँ पे आके रेटिनॉइड बैठता था, ये साइड पे आके थायराइड लगता था, साइड पे आके देखो Yes. ओवर हियर एंटीरोलैटरली, और वो सुपीरियरली आके बैठता है. रेटिनॉइड सुपीरियरली आके बैठता है, थायराइड एंटीरोलैटरली. ये एंटीरियरली भी और लैटरली भी. ये पोस्टीरियर साइड से हम देख रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे थायराइड लगता है और वहाँ ऊपर रेटिनॉइड बैठ जाता है. ये अगर हम इसे साइड से देखें तो इस तरह है. ये मोटा होता जाता है, पीछे जाता है क्रिकोइड, और मोटा होता जाता है, और पीछे इसके यहाँ पे रेटिनॉइड बैठ जाता है. ये रेटिनॉइड के ऊपर छोटा वाला कौन सा है? Corniculate. कॉर्निकुलेट है. ठीक है. और ये एपिग्लॉटिस किससे लगा हुआ है यहाँ पे? Steroid से. थायराइड से. और ये ऊपर किसके साथ लगा हुआ नजर आ रहा है? Hyoid. Hyoid bone. हायोइड बोन के साथ. एंटीरियरली हायोइड बोन के साथ लगता है. और इस लिगामेंट का क्या नाम होगा जिसके साथ ये लग रहा है? Hyoid ligament. Hyro. क्या होगा? हायो नहीं, इट्स बिटवीन द हायोइड बोन एंड द एपिग्लॉटिस. तो क्या नाम होगा? हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. और ये कौन सा लिगामेंट था? Lateral thyroid ligament. लैटरल थायराइड लिगामेंट और द लैटरल थायरोहायोइड लिगामेंट. इसमें कौन सी कार्टिलेज होती है कभी कभार? कौन सी कार्टिलेज होती है? Trititia. T से नाम शुरू होता है मैम, ब्रेन में नाम नहीं है. Tracheal. ट्रिटिशियल. अभी याद कर लो. इट्स ट्रिटिशियल कार्टिलेज. ठीक है. ये जो नाम वगैरह होते हैं ना, ये तुम लोग घर जाके तो नहीं याद करोगे. तुम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन, या तो प्रोनाउंसिएशन के साथ, अभी आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन सो यू लर्न इट राइट हियर इन क्लास, और यू गो एंड वॉच यूट्यूब एंड लर्न द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन सही आनी चाहिए. ऑलराइट, कमिंग ओवर हियर. अब एपिग्लॉटिस को थोड़ा सा स्टडी करते हैं. एपिग्लॉटिस उन्होंने कहा लीफ शेप्ड है, एंटीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स है. ऐसे ही अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स में सबसे ऊपर यही है. ठीक है. ये अपर एंड है, ये लोअर एंड स्टॉक है, ये हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है. इस तरह ये टंग के पीछे भी नजर आती थी. राइट. ये कौन सा फोल्ड है? ये वाला कौन सा फोल्ड है टंग का? याद करो. कौन सा फोल्ड है जो टंग में आके लग रहा है? Posterior. कौन सी आर्च थी? कौन सी आर्च थी? चलो आर्च. कौन सी आर्च है ये? Palatoglossal arch. पैलेटोग्लॉसल आर्च. पैलेटाइन टॉन्सिल से पता लगाओ ना कि पैलेटोग्लॉसल आर्च है. ये कौन सा पार्ट है टंग का? Root. Posterior. Root है मैम, root है. मोस्ट, पोस्टीरियर मोस्ट और द रूट. और ये क्या है बीच में छोटा सा होल? Foramen cecum. Cecum. फोरामेन सीकम. फोरामेन सीकम की क्या खास बात होती थी? क्या शुरू होता था यहाँ से डेवलप होना? Thyroid gland. थायराइड ग्लैंड. वेरी नाइस गाइस. थायराइड ग्लैंड होता है. अच्छा, ये जो सारे पोस्टीरियर मोस्ट के ऊपर ये जो गोल गोल चीजें बनी हुई ये क्या है? Lingual tonsils. Lingual tonsils. tonsils. शाबाश शाहिर. लिंगुअल टॉन्सिल्स. और ये पीछे क्या है? ये पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग के पीछे Epiglottis. 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 ये जो फोल्ड है ये मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है, यानी टंग और इसके बीच में. अगर ये ऊपर है ना तो टंग के साथ भी एक फोल्ड बनाता है. दैट इज द ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड. ठीक है. फोल्ड होता है, जस्ट द फोल्ड इज ओवर देयर.
जो कि यहाँ तक आता है, और फिर ये यूं करके आता है, ये जो लीफ है ना ये यूं करके बैठता है और ये पूरे लेरिंग्स को बंद कर देता है, और फिर खाना पीछे से फेरिंग्स में से चला जाता है। ठीक है, आगे लेरिंग्स पड़ा हुआ है या फेरिंग्स पड़ा हुआ है? Larynx. larynx में लेरिंग्स पड़ा हुआ है, वेरी नाइस। अच्छा जी, नीचे आ जाओ, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। Now we'll study the arytenoid. We said it was pyramidal shaped on the upper border of the cricoid cartilage था। ये हमने देख ली, इसकी एक एपिक्स होती थी, बेस होती थी। बेस से ये दो प्रोसेसेस निकलते हैं, एक वोकल प्रोसेस होता है और और एक एक मस्कुलर प्रोसेस होता है। Muscular process. ठीक है, इसके ऊपर आके ना वो कनेक्ट होते हैं, आपके मसल्स लगते हैं दोनों साइडों पे, तो वो इसको यूं यूं घुमाता है। ये जो है ना, कैन यू इमेजिन कि कोई चीज़ यहाँ से लगती तो ये यहाँ जाएगा तो ये वाला प्रोसेस यूं आ जाएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो ये प्रोसेस आगे आ जाएगा। ये रोटेट करता है, क्रीकॉइड कार्टिलेज के ऊपर रेटिनॉइड कार्टिलेज रोटेट करता है। ठीक है, दिस इज व्हाई हमने कहा था ना ये इलास्टिक है, इज इट, वी सेड दिस इज इलास्टिक, राइट? तो ये मूव करता है, रोटेट करता है, रेटिनॉइड रोटेट करता रहता है, एंड व्हेन इट रोटेट्स तो वो ये करता है कि ऊपर, इसके ऊपर से वो बनते हैं, वोकल फोल्ड्स बनते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि वोकल फोल्ड्स क्या होते हैं। वोकल फोल्ड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से साउंड निकलती है। ठीक है, वोकल फोल्ड्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं अंदर, तो साउंड बनती है। विल वॉच अ यूट्यूब वीडियो, आई शेयर सम छोटी सी यूट्यूब वीडियो सो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात करने की कोशिश करें। तो उन वोकल फोल्ड्स को खोलने बंद करने के लिए ये चीजें हिलती हैं लेरिंग्स के अंदर, ताकि वोकल फोल्ड्स ओपन एंड क्लोज हों। Corniculate and cuneiform, tiny से corniculate, cuneiform, corniculate cartilage का कभी नाम आ सकता है, just for the sake के कभी MCQs में आ जाए, कोई पूछ ले, so you should know of Santorini and of Risberg, cuneiform of Risberg। ठीक है, और tritiate यहाँ पे tiny सी होती है अंदर, lateral one। Corniculate, two small conical shaped cartilage articulate with the arytenoid, they give attachment to the epiglottic folds। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड क्या है। ठीक है, क्यूनिफॉर्म भी ऊपर होता है, वो रॉड शेप्ड होता है, and are found in the एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड and serve to strengthen them। तो क्यूनिफॉर्म क्या है, वो उस फोल्ड के अंदर है और उसे स्ट्रेंथ देता है, और कॉर्निकुलेट क्या है, उस पे आके एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड अटैच होता है। डू यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Are you guys here with me? नो Yes, मैम, ma'am. एक बार दोबारा बता दें। जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है ना, जो यहाँ पे एक फोल्ड पढ़ेंगे हम, which is called the एरी एपिग्लॉटिक। कहाँ से कहाँ तक होगा अगर एरी एपिग्लॉटिक है फोल्ड? Epiglottis and Arytenoid cartilage से रेटिनॉइड से और लेके epiglottis एपिग्लॉटिस से। ठीक है, यानी यहाँ से शुरू होगा और एपिग्लॉटिस तक होगा, यहाँ से शुरू होगा और एपिग्लॉटिस तक एक फोल्ड होगा, एरी एपिग्लॉटिक। वो अटैच होता है कॉर्निकुलेट पे आके। ठीक है, और ये बीच में क्यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। जब ये यहाँ पे फोल्ड किस चीज का होता है? फोल्ड मसल का होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है, बोन का होता है, कार्टिलेज का होता है, किस चीज का होता है फोल्ड? जब मैं फोल्ड बोलती हूँ तो तुम लोग क्या सोचते हो? मसल का फोल्ड होगा मैम। नहीं, मसल का नहीं होता। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फोल्ड, वो म्यूकोजा का होता है, म्यूकोजा का होता है, लिगामेंट भी नहीं होता। लुक ओवर हियर, हमने यहाँ पे ये फोल्ड की बात की, मीडियन एंड ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ये म्यूकोजा का फोल्ड होता है। यहाँ पे हम कहते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्च और फोल्ड, म्यूकोजा होती है वो। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक एरी एपिग्लॉटिक अटैच कॉर्निकुलेट के ऊपर होती है, हालांकि नाम एरी एपिग्लॉटिक है, कॉर्निकुलोग्लॉटिक नहीं है। डू यू सी? हालांकि वो हो कॉर्निकुलेट पे आके अटैच रही है, मगर बीच में उसके क्या फंसा हुआ है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्ड है। आई टेल यू अगेन कि हम बाद में हम इसे पढ़ते हैं फोल्ड में, क्यों मैं इसे बता दी है तो इसे याद रखो। आई टेल यू व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। जॉइंट्स ऑफ द लैरिंक्स, 3 जॉइंट्स हैं, 2 जॉइंट्स तो तुम लोगों ने पढ़ लिए, एक जॉइंट तो ये रहा। ये कौन सा जॉइंट है?
ठीक है। ये कौन सा जॉइंट है? थेरॉइड और क्रिकोइड का जॉइंट है। क्रिकोथेरॉइड जॉइंट। क्रीकोथायरॉइड जॉइंट है, ये क्रीकोथायरॉइड जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है? क्रिको एरिथ्रोइड जॉइंट। क्रीको एरिटेनॉइड है, ठीक है। सो क्रीकोथायरॉइड, क्रीको एरिटेनॉइड। फिर ये एरिटेनॉइड के ऊपर ये कौन सा पड़ा हुआ है कॉनिकल सा? Folliculate, cartilage. ये क्या पड़ा हुआ है? एरी के Corniculate. Ericorniculate. 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 So we had cricoarytenoid, ericorniculate. 3 joints हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोएरिटेनॉइड, एरिकॉर्निकुलेट। क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोएरिटेनॉइड दोनों कैसे जॉइंट्स हैं? साइनोवियल जॉइंट्स हैं। एवरीबॉडी ओके, व्हाट हैपेंस इज कि क्रिकोथायरॉइड के अराउंड कैसी मूवमेंट होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड होती है। क्रिकोएरिटेनॉइड में मैंने तुम लोगों को पता है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होती है। अब ये जो है मैंने तुम लोगों को बताया था ये यूं करके रोटेट होता है, तो ये कौन से एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है? यूं एक्सिस रन करेगा तो इसके अराउंड यूं यूं होगा ना। ये कौन सा एक्सिस होता है जो यूं रन करता है सीधा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को और क्या कहते थे? मैथ के स्टूडेंट्स आ गए। वर्टिकल एक्सिस, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस। तो जो ये क्रीको एरिटेनॉइड जॉइंट है उसके ऊपर मूवमेंट किस एक्सिस के अराउंड हो रही है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के। और कैसी मूवमेंट है? इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट है। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो यहाँ देख लेते हैं। ये मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस हो गई। अब ये कौन सा जॉइंट था? क्रिकोथायरॉइड। इसके ऊपर यूं मूवमेंट होती है इस एक्सिस के अराउंड। इस एक्सिस का क्या नाम होता है? Horizontal. हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल और द ट्रांसवर्स एक्सिस। यस, इसके अराउंड ये ऊपर नीचे होती है। जो आपकी थायराइड कार्टिलेज है ना, ये ऊपर नीचे होती है। ऐसे ही होता है व्हेन यू, ये जो लेरेंजियल प्रोमिनेंस है, जो एडम्स एप्पल है, ये ऊपर नीचे होता है। यस मैम। ये एक ही जगह पे फिक्स्ड है। जब निकलते हो, कुछ swallow करते हो, तो ऊपर नीचे होता है। हाउ? बिकॉज व्हेन यू आर swallowing stuff तो ये मूव करती है। ये जब ऊपर नीचे होती है थायराइड कार्टिलेज, तो ऑब्वियसली अलोंग विद इट आपकी लेरेंजियल प्रोमिनेंस और ये आपकी एडम्स एप्पल भी मूव करती है नेक में, ठीक है। तो ये कौन सी मूवमेंट है? क्रिकोथायरॉइड जॉइंट की अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस है और क्रिकोएरिटेनॉइड की वर्टिकल एक्सिस। और दोनों किस तरह के जॉइंट्स हैं? साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट है। मुझे लगता है सिर्फ शाहीर है मेरी क्लास में बोलने के लिए। लिखने के लिए तो एक बंदा लिख देता है, तो बाकी सारे तो एकदम उसके बाद लिखते हैं। लिखने वालों से मैं इतनी इम्प्रेस नहीं होती हूँ। ओके, सो इफ यू गाइज आर म्यूटेड टेल मी, मैं अनम्यूट कराऊंगी, मगर बोलो। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज नदीम, और आप देखते जाएं वो बच्चे कहते जाते हैं कि वो म्यूटेड है। अच्छा, देन द थर्ड वन इज योर एरिकॉर्निकुलेट। एरिकॉर्निकुलेट कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। ये किस तरह का जॉइंट है? ये कार्टिलेजिनस है, तो इस पे कोई खास मूवमेंट नहीं होती। साइनोवियल जॉइंट्स तो स्पेशली होते ही मूवमेंट के लिए। कार्टिलेजिनस जॉइंट फिक्स जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्यों आ सकता है इसके ऊपर? व्हाट आर द जॉइंट्स ऑफ द लैरिंक्स एंड व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर दे और व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स अकर ऑन दैम। Now we're going to do the membranes and ligaments. This will be the last topic for today. उसके बाद बाकी हम अगली दफ़ा continue करेंगे. So just bear with me for a few more minutes. ठीक है? Membranes को जब हम study करते हैं तो हम उसे extrinsic में divide करते हैं और intrinsic में divide करते हैं. ठीक है? जो हमने membrane पढ़ी है, thyroid, thyrohyoid, cricotracheal भी देखी थी, शुरू में देखी थी? यस मैम। क्रिकोट्रेकियल और हायोएपिग्लॉटिक भी देख लिए। यस मैम। ये सारी एक्सट्रिंसिक है। ये क्यों एक्सट्रिंसिक है? क्योंकि ये बाहर की साइड पे पड़ी हुई थी। ये सारी बाहर की साइड पे पड़ी हुई है। लेट मी शो देम टू यू। कम ओवर हियर। ये देखो,
ये वाली कौन सी लिगामेंट है? ये कौन सी लिगामेंट है? Cricotracheal ligament. क्रीकोट्रेकियल लिगामेंट, शाबाश। और ये कौन सी लिगामेंट है? Thyroid. थर्ड लिगामेंट। थायरोहाइड लिगामेंट, जिसका लैटरल साइड थिक हो जाता है। थायरोहाइड मेम्ब्रेन है जो कि लैटरल साइड थिक हो जाता है और क्या बन जाता है? Lateral thyroid ligament. ट्राइट्रिशियल नहीं, थिक होके लिगामेंट बनता है। ये सारी मेम्ब्रेन यहाँ पे थिक हो जाती है तो लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट बन जाती है। बाकी सारी थायरोहाइड मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन पतली होती है, लिगामेंट मोटी होती है। देखो नजर भी आ रही है, लोग कह रहे हैं थोड़ी सी मोटी नजर आती है। ये लिगामेंट और ये मेम्ब्रेन है। और तीसरी एक्सट्रिंसिक ये कौन सी है? Hyoepiglottic ligament. Yeah, the hyoepiglottic ligament. So we come here, we have 3 extrinsic and then we have 2 intrinsic. अब intrinsic वो है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, जो कि पूरे म्यूकोजा को सराउंड करी है और अंदर की तरफ है। Let me show it to you guys. ये तो सारी बाहर की साइड थी। अब ये जो अंदर की साइड है ना, ये अंदर की साइड में भी लिगामेंट्स होते हैं। अब जो अंदर की साइड के लिगामेंट्स है ना, जस्ट नो देयर टू ऑफ यू। आगे स्लाइड्स पे जाते जाते तो मैं दिखाती हूँ। एक क्वाड्रेंगुलर है, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, और उसका थिकनिंग से बनती है एक वेस्टिबुलर लिगामेंट। एक क्रीकोवोकल मेम्ब्रेन है जिसे मैं क्रीकोथायरॉइड भी कहूंगी। अभी से याद कर लो, क्रीकोवोकल भी है, क्रीकोथायरॉइड भी है, कोनस इलास्टिकस भी है। 3 नाम है इस मेम्ब्रेन के, क्रीकोवोकल, क्रीको थायराइड and Conus elasticus. कोनस इलास्टिकस। इसकी थिकनिंग से वोकल लिगामेंट बनती है, ठीक है। ये 3 है। अभी मैं एक्सट्रिंसिक दोबारा से दिखा देती हूँ। एक्सट्रिंसिक में एक बात ये रखनी है याद, ये 3 एक्सट्रिंसिक है हमारी। एक्सट्रिंसिक में ये बात याद रखना है that this is your thyrohyoid membrane. थायरोहाइड मेम्ब्रेन के अंदर होल्स नजर आए थे, हर पिक्चर में देखें ये 2 होल्स होते हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है, मॉडल पे भी नजर आता है। इसमें से इंटरनल लेरेंजियल नर्व गुजरती है और सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स गुजरती है। अभी के लिए ये याद कर लो, व्हेन वी स्टडी द वेगस नर्व देन यू नो कि ये वेगस की ब्रांचेस हैं, ठीक है। इंटरनल लेरेंजियल नर्व गुजरती है और सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स गुजरती है। Then you have the hyoepiglottic and you have the cricotracheal. Moving on, thyrohyoid membrane. Thyrohyoid membrane, it connects the upper margin of the thyroid cartilage, to the lower border of the hyoid bone. Midline में thicken होती है median thyrohyoid ligament और side पे thicken होती है lateral thyrohyoid ligament. We just talked about this one. अभी तक मैंने इसकी बात की थी, right? So we have 2 thickenings. Laterally it is the lateral thyrohyoid and medially it is the median thyrohyoid. और मेम्ब्रेन हमने बता दिया किस चीज से पियर्स हो रही है, सुपीरियर लेरेंजियल वेसल से और इंटरनल लेरेंजियल नर्व से, ठीक है। Cricotracheal ligament connects the cricoid to the first string of the trachea. Hyoepiglottic extends from the midline of the epiglottis. Midline of the epiglottis. ये देख रहे हो? Midline of the epiglottis to the body of the hyoid bone. इस तरह करके, ठीक है। So this is your median thyrohyoid ligament, lateral thyrohyoid ligament, बाकी सारी thyrohyoid membrane, ठीक है। उसके अंदर से ये चीजें जा रही हैं। When you come downwards, ये मैंने कौन सी काट ली, ये कौन सी मेम्ब्रेन बताई थी, सारी ब्लू वाली? क्रिकोथायरॉइड क्रीकोथायरॉइड थी। क्रीकोथायरॉइड का मीडियन क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट होता है और पीछे क्रीकोथायरॉइड है। क्रीकोथायरॉइड के बाकी दोनों नाम क्या थे? कॉर्नस इलास्टिकस क्रीकोवोकल, ठीक है। मगर ये इंटरनल है, ठीक है। ये वाली जो है ना, ये इंट्रिंसिक लिगामेंट है, ये एक्सट्रिंसिक नहीं है। ये वाली एक्सट्रिंसिक है, हायोएपिग्लॉटिक एक्सट्रिंसिक है, और ये वाली रेड वाली एक्सट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक।
पहले करते हैं क्रीकोथायरॉइड, जो कि क्रीकोवोकल और क्रीकोइलास्टिकस भी है। इसके अंदर आ जाना, तो क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट इज अटैच्ड टू द आर्च ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज and extends superiorly to end in a free upper margin which is composed of elastic tissue। तो ये आपका आर्च थी, ठीक है। इसी तरह करके आर्च थी, ये पूरी एंटीरियरली पतली थी, पीछे मोटा होता जा रहा है क्रीकोइड कार्टिलेज। ये यहाँ पे आके क्या अटैच होता है? थायराइड what? Thyroid gland, inferior horn of thyroid। थायराइड कार्टिलेज का इंफीरियर हॉर्न। तो ये आर्च है, ये आर्च से शुरू हो रही है क्रीकोथायरॉइड, मगर ये यहाँ पे एंटीरियरली सिर्फ थायराइड को अटैच करिए, ठीक है। एंटीरियरली कहाँ अटैच होती है? टू द इनर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। पोस्टीरियरली वोकल प्रोसेस ऑफ द एरिटेनॉइड, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कार्टिलेज है, सो पे अटेंशन विद मी। आर्च से शुरू हुई, एंटीरियरली इनर साइड ऑफ थायराइड, पीछे से पोस्टीरियर साइड ऑफ एरिटेनॉइड के वोकल वाले मसल को, वोकल वाले प्रोसेस को, फ्री मार्जिन, जिसके बीच में फ्री मार्जिन है, वो एक लिगामेंट बन जाता है, जो कि वोकल लिगामेंट है। ये क्या है? ये ट्रू वोकल कॉर्ड है। ये वोकल लिगामेंट को आप क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स सुना है ना, वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए, गाना नहीं गा सकते, आवाज नहीं निकल रही, वोकल कॉर्ड खराब हो गए। दिस इज योर वोकल कॉर्ड, ठीक है। This is your vocal cord, the vocal ligament. This is why it is called the cricovocal ligament, or the cricovocal membrane, or the cricothyroid membrane, or the third name was the Conus elasticus. conus elasticus. You guys are super smart and paying good attention, so we're gonna move on, ठीक है। Let's move on। और मैंने बीच में बता दिया था medial cricothyroid ligament भी होता है, ठीक है। Then we have the quadrangular. The second one was the quadrangular membrane। यहाँ पे बेसिकली जो इंट्रिंसिक दोनों है ना, ये एक कॉन्टिन्यूएशन है। देखो ना, ये ऊपर से नीचे, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, इस सब को हम कहते हैं फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ऑफ द लेरिंक्स, सॉरी, फाइब्रो इलास्टिक। अब वो जो फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन है ना, वो दो में डिवाइड हो गई, एक क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन में, एक क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट में, और बीच में उसके ये गैप है, ये बीच में गैप है। इस गैप को कहते हैं वेंट्रिकल ऑफ द लेरिंक्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल ऑफ द लेरिंक्स। वेंट्रिकल ऑफ द लेरिंक्स भी कहते हैं, साइनस ऑफ द लेरिंक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा गैप है। इस गैप के नीचे वाला जो है फोल्ड, उसको हमने कौन सा फोल्ड का है? Vocal fold. वोकल फोल्ड, वोकल लिगामेंट और द ट्रू वोकल कॉर्ड। और ये वाला जो होता है ना ऊपर वाला, इसे कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड, वेस्टिबुलर लिगामेंट या फॉल्स वोकल कॉर्ड। False vocal cord. वेरी नाइस, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द फॉल्स वोकल कॉर्ड। इन दोनों के बीच में जगह होती है जिसे हम साइनस या वेंट्रिकल ऑफ द लेरिंक्स कहते हैं। सो हमने ये क्रीकोथायरॉइड कर लिया था, अब हम क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की अटैचमेंट्स कर लेते हैं। So the quadrangular membrane on each side runs between the lateral margin of the epiglottis and the anterolateral surface of the arytenoid cartilage on the same side, ठीक है। epiglottis की lateral side से चल रही है, ठीक है, lateral margin से शुरू हुई है, lateral margin से शुरू हुई है और पीछे arytenoid तक जाती है। तो ये सारी एक साइड की। इसी तरह दूसरी साइड की शुरू होती है, इस तरफ के मार्जिन से। एपिग्लॉटिस तो एक ही है, ठीक है। एक उस तरफ के मार्जिन से शुरू होगी, एक इस तरफ से मार्जिन से शुरू होगी, एक साइड के एरिटेनॉइड को लगेगी, एक दूसरे साइड के एरिटेनॉइड को लगेगी। तो इस तरह आपकी ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड की बात की थी मैंने, की थी। Yes, ma'am. Yes. Epiglottis. Each quadrangular membrane has a free upper surface. All of this is a free upper surface and a free lower margin, which becomes the vestibular fold. And the vestibular fold is separated by the vocal fold membranes a little bit, and I'll explain these pictures of Pinamages muscles or folds or muscles.
नहीं है तो नो ही लिख दो गाइस। मैम आपकी आवाज नहीं है। हाँ जी, Sir Singh, do you guys have any questions? नो मैम। All right, मैंने जो है ना I want you guys to take a picture of the assignment. आज के असाइनमेंट ये है, ठीक है, जो कि सैटरडे लेक्चर से पहले मेरे पास होनी चाहिए। और मैम मैं ये स्लाइड शेयर कर। हाँ मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी ताकि यू गाइस कैन स्टडी बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसकी कंटिन्यूएशन होगी। सो आई वुड लाइक मैम प्रीवियस स्लाइड्स भी आपने सेंड करनी थी। नॉर्मा बिजालिस मैंने सेंड कर दिया है, अभी क्लास से पहले ही कर दिया था। यस मैम ओके। ये वाली मैं शेयर कर दूंगी, ये वाला असाइनमेंट चाहिए मुझे नेक्स्ट, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भेजी अभी तक, जोहा वाज इट? It was Zoha and it was Zishan, I think. I need their assignments by today, पिछली वाली। चलो then I'm going to log out. You guys take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।